Thank you, sir. Okay, so without further ado, I do want to, before we get started, if I can get everybody's attention real quick, put your hands together for Mohit Bhai or Sigri Grill and the wonderful and beautiful staff who always serves us the delish food with a smile on their faces and promptly. Always, always a pleasure to be here. And with that, we're going to get rolling. First and foremost, I would like to invite सुबू हियर। सुबू लेकर चलेंगे 1953 की फिल्म पतिता की तरफ। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक और शैलेंद्र साहिब की, वो हमेशा की तरह ये दो लिरिसिस्ट होते थे। शंकर जयकिशन का जब भी म्यूज़िक हो तो शैलेंद्र साहिब ने लिखा हुआ है ये गीत। तलत महमूद ने, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, गाया हुआ है। बहुत बहुत मधुर गीत है ये। आइए ज़रा और सुनाइए हमें सुबू। शुक्रिया रिजवान। धर्मदेव पुरुषोत्तम आनंद, जिन्हें हम देवानंद के नाम से जानते हैं। चेक। तो उनकी बहुत सारी पिक्चरें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई शाहों के शाह, शहनशाह। तो ये जो गाना है पिक्चर का, मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट लगाऊंगा इसमें बताने के लिए। Percy Bysshe Shelley was a poet and a writer. In his lifetime, he wrote about 300 poems, and this one particularly is called "To a Skylark," because he and his wife, they were walking by the side of the lake when they saw the skylark humming, and he created a poem which had 21 verse stanzas. And these stanzas were like A, B, A, B, B, which means 5 lines. The first and the second line, last words would rhyme. The second and the fourth would rhyme, and the fifth would also rhyme along with these. But why am I saying this? He in his writing To a Skylark, which had 21 verses, the 18th verse was, I've not memorized this, so I'm going to read it out, okay? It says, we look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. This was written almost 2 years before he died in 1820. In 1822, he died after writing 300 poems at the age of 29. He died at the age of 29. Now, in 1953, Shailendra picked up this last line. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें. All right. So such was the inspiration. All right. Let's have the track, please. है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को
बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब हमका अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं, समझो के सवेरा दूर नहीं। जब हमका अंधेरा घिर आए समझो के सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे घिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं सबसे मधुर वो गीत। Thank you. Thank you. All right. Thank you. Actually, I didn't need this one. There we go. That's better. Okay. Thank you, Subbu. Beautiful, beautiful. बहुत मधुर गीत था। और you know, again, हम लोग इसको यहाँ पर वीडियो इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं कर रहे, so not everyone can see how well you were, or rather Devanand was lip syncing with you. But I was sitting there just mesmerized, just looking at the screen, because this is such a rare song. Talat Mahmood ने बहुत खूबसूरती से इसको गाया था, and Subbu, it was a pleasure listening to you sing it. Devanand की थीम जब अनाउंस हुई थी, I was double excited because obviously देवानंद साहिब की थीम है तो एक से एक बेहतरीन गाना होगा, लेकिन also जिस वक्त ये स्टार थे देवानंद 50s और 60s में, उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर्स में सारे के सारे जिस म्यूज़िक डायरेक्टर का सितारा सबसे उरूज पर था वो यकीनन दादा बर्मन, सचिन देव बर्मन साहिब थे। और आज की शाम बहुत सारे गाने जो पिक किए हैं हमारी टीम ने वो सचिन देव बर्मन साहिब के तख्लीक करदा हैं। तो मैं देख रहा था कि ये थम्पी को मैं दावत देने लगा हूँ यहाँ पर आने के लिए, अगला गीत गाने के लिए। उनका साथ देने के लिए कैलाश आएंगे, और मैं उनकी लिस्ट देख रहा था। कैलाश की लिस्ट में एक्चुअली मैं थम्पी से शुरू करता हूँ। थम्पी की लिस्ट में 5 गानों में से 3 एस डी बर्मन का म्यूज़िक के वाले गाने हैं। कैलाश की लिस्ट में 5 गानों में से 5 गाने एस डी बर्मन साहिब की के हैं। तो एक्सलेंट। आई मीन एवरीबॉडी नोज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आर डी बर्मन, और ऑफ कोर्स उनसे मे बी एक नॉच ही नीचे दादा बर्मन होंगे मेरे करीब। तो रियली एक्साइटेड अबाउट ऑल द सॉन्ग्स दैट वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग टुडे। फ़िलहाल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी की तरफ चलते हैं। थम्पी और कैलाश आएंगे और हमें सुनाएंगे कि शोखियों में अगर फूलों का रंग घोला जाए और उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी शराब तो क्या होता है। Thank you. Hello, check.